ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেটর আকাশ সিংজি তোমায় জানাই স্বাগতম। রাজ্য সভাপতি তোমায় জানাই স্বাগতম। আকাশ সিংজি তোমায় জানাই স্বাগতম। রাজ্য সভাপতি তোমায় জানাই স্বাগতম। জয় ভীম। আমাদের সম্মানীয় নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন। আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাব। আপনারা সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবেন। সকলে মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছে। আমরা অনুষ্ঠান শুরুর আগে বহুজন সমাজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করা সঙ্গুরু মহাপুরুষ মনীষীবৃন্দ যাদের রাস্তায় চলে আজকে বহুজন সমাজে দেশের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, সেই সব মহাপুরুষ এবং মনীষীবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মূল কর্মসূচি সূচনা করব। সর্বপ্রথম আমরা আমাদের মহাপুরুষ মনীষীবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে যাচ্ছি। সর্বপ্রথম আমাদের কোঅর্ডিনেটর সাহেব এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি সাহেব দুজনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবেন। তারপরে আমরা উপস্থিত যারা আছি একে একে আমাদের মহাপুরুষ মনীষীবৃন্দকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করব। জয় ভীম, জয় ভারত। বহুজন সমাজ পার্টি জিন্দাবাদ। বহুজন সমাজ পার্টি জিন্দাবাদ। কাশী রামজি জিন্দাবাদ। বাবা সাহেব জিন্দাবাদ। বাবা কাশী রামজি অমর রহে। বাবা সাহেব অমর রহে। বাবা সাহেবের সংঘর্ষ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে বহুজন সমাজ পার্টি লড়ছে, লড়বে। জয় ভীম, জয় ভারত। বহুজন সাথী এবার বহুজন মনীষীবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। সম্মানীয় আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং আমাদের রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় শ্রী হরিদাস রায় মহাশয়, মাননীয় শ্রী তুষারকান্তি বিশ্বাস মহাশয়, মাননীয় শ্রী অচিন্ত বিশ্বাস মহাশয়, পর্ণিতা রায় মহাশয়া এবং গৌতম রায়। এবার বহুজন মনীষীবৃন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন আমাদের সম্মানীয় রাজ্য কোষাধ্যক্ষ মাননীয় সুমুদ বিশ্বাস মহাশয়। কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় আকাশ সিং রায় মহাশয় ওনাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে দিচ্ছেন বহুজন সমাজ পার্টির কর্মী মাননীয় চন্দ্র মল্লিক মহাশয়।
এখন বহুজন সমাজ পার্টির পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্য সভাপতি মনোজ হাওলাদার মহাশয়কে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পিপাসা মণ্ডল মহাশয়। সমাপ্ত হলো। এবার আমরা আজকের সভার যে মূল কার্যক্রম সেই মূল কার্যক্রমে প্রবেশ করছি। সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি তাকে পরবর্তী কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করছি। हेलो अब तक विचार तक बाबा साहब अम्बेडकर महाप्राण जगन्नाथ मंडल और माननीय घनश्याम जी का आंतरिक श्रद्धा जानिए बहुजन समाज पार्टी सर्वभारतीय नेत्री बहिन कुमारी मायावती जी का प्रणाम जानाई এবং আজকের এই সভার উপস্থিত আমাদের রাজ্যের কেন্দ্রীয় কোঅর্ডিনেটর মাননীয় আল্লাহ সিংকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়াও আমাদের যারা স্টেট কোঅর্ডিনেটর এবং স্টেট কমিটি এবং যারা জেলা পদাধিকারী এবং যারা সকল উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে আজকের এই শুরু করছি। প্রথম হচ্ছে যে আজকে আমাদের আপনাদের সামনে আমাদের যে পদাধিকারী তাদের পরিচয় করে দিই। আপনারা সবাই জানেন আমাদের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর এখানে উপস্থিত আছেন মানিয়া ছিলেন। আপনারা কি করবেন, তিনি হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় এবং এক্স এমএলসি বলে এমএলসি আছে এমএলএ বলে মাননীয় আতাশ সিং রাও আপনাদের সামনে পার্টি বক্তব্য অর্গানাইজেশন ব্যাপারে যা আপনারা তিনি করবেন। पूरे विश्व को मानवता बंधुत्व वाले भगवान तथागत के श्री चरणों में नमन करता हूँ और उनके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, नारायण गुरु जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भामसेन ईएसओ तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय सैनिक, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, आबादी के हिसाब से भारत ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार आई मुख्यमंत्री, न्याय, त्याग व बलिदान की जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज जिला की संगठन समीक्षा के इस बैठक में हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मनोज हावलादार जी और सभी हमारे स्टेट कमेटी के पदाधिकारीगण, सेक्टर इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण, डीजे बामसेन के सभी पदाधिकारीगण, मेरे समक्ष बैठे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों सिपाहियों, सम्मानित साथियों, जैसा कि विदित है हम लोग आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी के निर्देश पर समय समय पर संगठन की समीक्षा या वो जो भी दिशा निर्देश आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी हम लोगों को देती हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उसको उन अक्षर सही हम उसको निभाने का काम करते हैं, अक्षर वर्ड टू वर्ड पालन करते हैं
इम्प्लीमेंट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एक मासिक बैठक जो स्टेट कार्यालय में होती है, स्टेट लेवल की होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम लोग सब करते हैं। जैसे कि आज यहाँ पर नॉर्थ 24 डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग का आयोजन यहाँ बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में किया गया है। जैसा कि पहले आप लोगों को सूचित कर दिया गया होगा कि हम इधर आएंगे तो संगठन की समीक्षा करेंगे। संगठन की समीक्षा में आप सब लोग जानते हैं जो मौजूदा पदाधिकारी हैं, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी या अगर सेक्टर की कमेटी भी बनी है, जहां तक संगठन बना है उसकी समीक्षा हम लोग मीटिंग में करते हैं। लेकिन अभी जैसे सम्मानित अध्यक्ष जी ने और हमने दोनों ने ये नोट किया कि कितने पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर आए हैं और जो यहाँ निकलकर बात सामने आई है कि जिले का, डिस्ट्रिक्ट का एक भी पदाधिकारी, 7 में से एक भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है, बहुत खेद का विषय है। इट्स नॉट सो गुड बहुजन समाज पार्टी के लिए और हम सब के लिए ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, विधानसभा की बात करूं तो 33 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और 33 कॉन्स्टिट्यूंसी इस जिले के अंदर आती है और कॉन्स्टिट्यूंसी 94 से 94 टू 126 तो 54 से 126 नंबर की विधानसभाएं इस जिले के अंतर्गत आती हैं और उनके भी यहाँ पदाधिकारी लगभग मौजूद नहीं है। ये और खेद का विषय है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर जिले के संगठन ही मौजूद नहीं होगा तो विधानसभा का संगठन कैसे काम करेगा और किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। मैं बहुत चुकी तो बहुत आश्चर्य, आई एम सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। जॉन इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज कौन है इधर? आप हैं, कराइए। क्या नाम है आपका? विधानसभा का कोई पदाधिकारी नहीं आया था? कहाँ है? 5 खड़े हुए हैं जो लोग आए विधानसभा से 5 लोग जो पद पर बैठे हैं और वो जिले की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में नहीं आ रहे, क्योंकि समाजी साथियों आप सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत में अनुशासन के लिए और डिवोशन के लिए, मेहनत के लिए अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता और अनुशासित कार्यकर्ता किसी पार्टी का माना जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, टीएमसी नहीं और तमाम पार्टी नहीं, केवल अनुशासित कार्यकर्ता माना जाता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है, किसी और पार्टी का नहीं। लेकिन यहाँ पे एक मिल रहा है कि 5 दिन पहले इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर पदाधिकारी नहीं है। ये बहुत खराब बात है। एक तरफ हम लोग नारा लगाते हैं कि देश के पीएम कैसी हो, बहन कुमारी मायावती जी जैसी हो। क्या हम लोग इस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बना पाएंगे? मैं समझता हूं कि इस नारे में यहाँ के हिसाब से खबर वेस्ट बंगाल हमें सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि जब संगठन ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ाया जाएगा? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर पीएम बनेंगे तभी तो बनेगी, जब यहाँ से आप एमपी जिता के लेके जाओगे तभी बनेगी ना। एमपी या एमएलए क्या और यहाँ सरकार कैसे बनेगी जब आप विधायक जिता के लेके जाओगे? और सांसद विधायक बनाता कौन
बार उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की सरकार में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार में मुख्यमंत्री एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मुख्यमंत्री बनी, तो आदरणीय बहन कुमारी महारानी जी ने ये बात कही थी कि मैं आज चौथी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी हूं और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोगों ने मुझे दी है। पूर्ण बहुमत आप सब लोग समझते हैं और साथ साथ ये कहा कि इसमें स्टेट कमेटी का अपना रोल है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का अपना रोल है, सेक्टर कमेटी का अपना रोल है और एक जोन कमेटी का अपना रोल है। लेकिन अगर मैं आज चौथी बार भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की मैं मुख्यमंत्री बनी हूं, तो देश केवल सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी की है और मेरे संगठन के किसी और की सम्मानित साथी नहीं। बहन जी को मालूम था, अच्छे से जानते हैं, बहन जी नीचे से ऊपर नहीं है, बहन जी पैराशूट से नीचे नहीं है, बहन जी नीचे से ऊपर नहीं है। बहन जी ने सेक्टर भी देखा है, बूथ भी देखा, विधानसभा भी देखी है, मंडल पे काम किया, स्टेट पे काम किया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो अच्छे से जानते हैं कि संगठन का क्या रोल होता है। आदरणीय बहन कुमारी मैम जी ये बात अच्छे से जानती है, जिस दिन पोल होता है, पोलिंग होता है, पोल होता है, जिस दिन वोट पड़ती है, सब जगह प्रदेश अध्यक्ष नहीं जा सकते हैं, स्टेट कमेटी के लोग सब जगह नहीं जा सकते हैं और जो कैंडिडेट भी असेंबली का है चाहे पार्लियामेंट का है वो भी और एक उसका एक मुख्य चुनाव भी करते हैं, चीफ पोलिंग एजेंट और केवल कैंडिडेट ही सारे बूथों पर जा सकते हैं। लेकिन एक दिन में इतना समझिए सब जगह चले जाए तो वो बूथ कैसे जीतते हैं? जो हमारा बूथ का कार्य करता है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का पदाधिकारी है, वो विरोधी पार्टियों से लड़ता है, झगड़ता है, पुलिस के डंडे लाठी खाता है, लेकिन एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दिलाने का काम करता है। हम बूथ जीतते हैं तो सेक्टर जीतते हैं, सेक्टर जीतते हैं तो विधानसभा जीतते हैं और विधानसभा जीतते हैं तो हमारे विधायक बनते हैं और स्टेट में हम लोग सरकार बनाते हैं और अब विधानसभा के बाद हम फिर एमपी जीतते हैं तो सेंटर में हमारी सरकार बन सकती है। हमारे साथी तो बहन जी ने बहुत जोर देकर ये किया है कि अगर आप अच्छी सरकार चाहते हैं, अच्छे विधायक चाहते हैं, अच्छे सांसद चाहते हैं तो आपको अच्छा संगठन बनाना होगा। अच्छे से अच्छा सांसद, अच्छे से अच्छा विधायक, अच्छे से अच्छी सरकार अच्छा संगठन नहीं दे सकती, लेकिन एक अच्छा संगठन, मजबूत संगठन विधायक दे सकता है, सांसद दे सकता है, स्टेट में मुख्यमंत्री दे सकता है और केंद्र में प्रधानमंत्री भी दे सकता है। ये केवल अच्छा संगठन कर सकता है। हम लोगों को संगठन बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संगठन के पदाधिकारी जो बनाए, हम ऐसे लोग न बनाए जो हमारी जेब के हो। जेबी संगठन नहीं बनाना, जो अच्छा काम करने वाला हो, पुराना हो, बैंक की वर्कर हो। हम लोगों को ये नहीं कि मेरी सेवा ज्यादा करता है, कि मेरे आसपास घूमता रहता है, मेरा सेवा ज्यादा करता है, ऐसे लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाना। और केवल पदाधिकारी मैरिट के बेस पे वेल क्वालिफाइड हो, पार्टी के लिए डिवोटेड हो, पार्टी की आइडियोलॉजी को समझता हो, उसी व्यक्ति को पदाधिकारी आप लोग बनाए। जब अच्छे पदाधिकारी जिले को बनेंगे तो विधानसभा को बनाएंगे, विधानसभा के लोग सेक्टर को बनाएंगे, सेक्टर वाले बूथ को बनाएंगे। हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक का जब अच्छा संगठन होगा तो हम लोग यहाँ पर 2024 में जो आने वाला हमारा लोकसभा का चुनाव है, हमसे आदरणीय बहन कुमारी मैम की झोली में कुछ रिजल्ट लेकर डाल सके, यानी कि 2, 3, 4 सांसद भी यहाँ अगर आप लोगों ने जिता लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट सम्मानित साथियों यहाँ के हिसाब से माना जाएगा। और हम लोग बहन जी को जो हमारे संतों महापुरुषों का सपना है वो हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा सांसद यहाँ से जिताकर सम्मानित साथियों भेजें। और जब भी यहाँ विधानसभा का चुनाव हो, हम दिन रात लग जाए और मेहनत करें। हम लोग जितने विधायक जीत पाएंगे, जिता पाएंगे उतना अच्छा होगा। ऐसा माहौल विधानसभा में आप लोगों को डेवलप कर देना है कि या तो हमारे बगैर किसी की
सरकार नहीं बने, अगर सरकार बने तो केवल इवेंट भगवान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। लेकिन उसके लिए हम लोगों को भाई भतीजावाद यानी परिवार से थोड़ा सा परिवारवाद से और भाई भतीजावाद से दूर रहना पड़ेगा। अपने जो लोग हैं उसको पार्शियलिटी ना करके केवल ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को संगठन में हम लोग स्थान देंगे तो सम्मानित साथियों हम पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल अच्छे वर्करों को लिए जाना चाहता है, लेकिन आज मुझे यहाँ क्योंकि मेरी स्टेट की मीटिंग पहले हमने कई बार ली है और 14 तारीख में भी स्टेट की मीटिंग है। हम उधर अभी भुवनेश्वर मीटिंग लेकर आए हैं, उधर स्टेट की मीटिंग ली और हमने जिले की मीटिंग ली। वहां पर यहाँ से अच्छा संगठन है। हम उम्मीद ये करते थे कि यहाँ भी संगठन अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो बहानेबाजी चाहता है। हमारी समझ नहीं आ रही है कि जिले का पदाधिकारी कोई नहीं आया, 33 विधानसभाओं में तो 4 प्रेसिडेंट आए। ये तो बहुत बुरी बात है। स्लॉट शॉट के लिए तो अच्छी बात नहीं है संगठन के लिए, पार्टी के लिए। तो जो भी हमारे पदाधिकारी नहीं है उनसे अध्यक्ष जी और जो हमारे सेक्टर के इंचार्ज है जवाब तलब करेंगे और हमने जिले की कमेटी को डिजोल्व कर दिया है। जब उनका जवाब आ जाएगा उसके बाद हम ये तय करेंगे कि अगर उनका जवाब माकूल हुआ है यानी कि जवाब अगर ठीक हुआ, कोई विशेष कारण है, बीमार है या और किसी कारण से वो नहीं है, जेन्युइन कारण है, तो उनको दोबारा पदाधिकारी बनाएंगे। नहीं तो नए पदाधिकारी हम लोगों को बनाकर हमें संगठन बना के तैयार कर देना है। सम्मानित साथियों, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ये कहा करते थे कि मैं काम करूंगा तो काम होगा, यदि मैं काम करूंगा तो काम होगा, मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। वो स्वयं से बताते थे और साथ ही साथ ये कहते थे कि साल में 365 दिन होते हैं, मुझे तो बीमार होने का भी मौका नहीं मिलता कि मैं एक दिन बीमारी का बहाना करके मैं आराम कर लूं। फिर जब ये कहते थे मैं काम करूंगा तो काम होगा, मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। ये हम सब लोगों को माननीय काशीराम साहब से सीख लेनी चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होके गली गली मोहल्ले जाते थे, वहीं बैठकर संगठन बनाने का काम करते थे और अच्छे पदाधिकारियों को, अच्छे लोगों वर्करों को पदाधिकारी बनाने का काम करते थे और अच्छे पदाधिकारियों को अप्रिशिएट करते थे, उनका सम्मान भी करते थे। हम लोगों को अच्छा संगठन बनाना चाहिए। अगर हमें पार्टी को आगे ले जाना है, वास्तव में हम लोग अगर ये चाहते हैं कि जो मान सम्मान हमें परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब माननीय काशीराम साहब और बहन जी के जीवन संघर्ष के कारण हम लोगों को मिला है, हमारे संत महापुरुषों के जीवन संघर्ष के कारण हम लोगों को मान सम्मान मिला है, वो सम्मान हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिले। क्योंकि सम्मानित साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इस वक्त देश के हालात हैं बहुत खराब हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, टीएमसी के लोग, ये और जो फिरकापरस्त पार्टियां, मनुवादी पार्टियां हैं, ये आपस में साठगांठ किए हुए हैं और ये लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी बढ़े। ये नहीं चाहते कि इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, संकट, भूखपात्री यानी कि SC, ST, OBC समाज के लोग शासन सत्ता पर काबिज हों, वो सांसद बने, विधायक बने। ऐसे हालात देश में डेवलप हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू से मुस्लिम को, मुस्लिम से हिंदू करवाने का काम करते हैं। टीएमसी का आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो भी ममता बनर्जी भी हिंदू मुस्लिम को मिलाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम सम्मानित साथियों ये पार्टियां करती हैं। और हमें इस बात पर गर्व है कि अगर कोई पार्टी ऐसी है जो इस देश में पूरी तरह संविधान को मानने का काम करती है, कोई नेता कोई ऐसी है जो पूरी तरीके से भारतीय संविधान के अनुसार अपनी पार्टी और अपनी राजनीति को करती है, तो केवल एक नेता बहन कुमारी मायावती जी, दूसरा और कोई नहीं, जो भारतीय संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्टी को चलाने का काम करती है। हमारी सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा सम्मानित साथियों 4 बार की सरकार में एक बार में नहीं हुआ। 2007 से 2012 तक कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। और सम्मानित साथी, आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा ऐसा अवसर था जिसमें बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम विवाद, झगड़ा, संघर्ष हो सकता था और आप लोग सब लोग जानते हैं वो कौन सा दिन था। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी के
कार्यशैली से बहन कुमारी मायावती जी के मजबूत शासन सत्ता चलाने के तरीके से कोई भी अनहोनी उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी। आप सब लोग जानते हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पूरी दुनिया इस बात से अवगत है कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। बहुजन समाज पार्टी के ताकत में या बहुजन समाज पार्टी के बनने से पहले ये होता रहा। और हिंदू मुस्लिम झगड़े का सबसे बड़ा कारण था बाबरी मस्जिद। मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर शासक अच्छा हो तो किसी को किसी तरह का नुकसान या धार्मिक भावना के किसी तरह का जाने माने नुकसान नहीं हो सकता। ये सत्ता में बैठे लोग भी लड़ाई झगड़ा कराते हैं और हिंदू और मुस्लिम को ध्रुवीकरण कराने का काम करते हैं अपने अपने पक्ष में। आप लोगों को याद होगा 30 सितंबर 1910, आप लोग 2010 को सम्मानित साथियों आप लोग याद करो। 30 सितंबर 2010 को बाबरी मस्जिद का फैसला आना था सम्मानित साथियों, आप सब लोगों को याद होगा। और पूरी दुनिया इस बात से घबराई हुई थी, सारे स्टेट घबराए हुए थे कि फैसला आएगा उत्तर प्रदेश में और पूरा भारत से आज हिंदू मुस्लिम की बात हो जाएगा। वहां सरकार की आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, जो अपने मजबूत शासन के बेहतरीन शासन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाती है। इसलिए उन्हें 8वीं महिला शक्तिशाली महिलाओं में शुमार होने का अवार्ड, आयरन लेडी का अवार्ड आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मिला। तो उधर 30 सितंबर को फैसला आना था। उत्तराखंड बंद, मध्य प्रदेश बंद, हरियाणा बंद, दिल्ली बंद, राजस्थान बंद, हिमाचल बंद, उधर ये समझो के सारे चंडीगढ़ बंद, सब जगह बिल्कुल साइलेंट था। सबको ये होता कि फैसला आएगा और हिंदू मुस्लिम लड़ाई होगा। फिर तो बस लोग इस बात के इंतजार में थे कि अब बहन कुमारी मायावती की सरकार नहीं रहेगी। जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा तो केंद्र की सरकार 356 लागू कर देगी, यानी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देगी और बहन कुमारी मायावती की सरकार बीच में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने बड़ा सूझबूझ का परिचय दिया। टोटल डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, टोटल एसएसपी, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईजी और डीआईजी, सब लोगों को लखनऊ बुलाया और ये कहा कि जिसके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो गया, आप फील्ड अधिकारी को समझाइए, इंस्पेक्टर को समझाइए, डिप्टी एसपी को समझाइए कि अगर कोई भी आवाज करे, कोर्ट के फैसले के कोई भी खिलाफ जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना है। और बहन जी ने पूछा कि कितने हथियार हैं, बहन जी ने हथियार मुहैया कराए और 4 लाख डंडे, 4 लाख डंडे पुलिस को खरीदवाए, जिनको ये हमारे देशी भाषा में डंड कहते हैं। और ये कहा कि जो भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहां से नीचे का हिस्सा बिल्कुल जब तक मारते रहना जब तक उसके नीचे आवाज न बंद हो जाए। और बहन कुमारी मायावती जी के कुशल शासन के हिसाब से 30 सितंबर 2010 को फैसला आया और हिंदू भी सुरक्षित और मुस्लिम भी सुरक्षित, किसी के नमूस भी सम्मानित नहीं। इसे कहते हैं शासन, इसे कहते हैं प्रशासन। प्रशासन चलाना कारण ही था, लोग डर भी रहे थे। हिंदू ये चाहते थे कि राम मंदिर के हक में फैसला है, मुस्लिम ये चाहते थे बाबरी मस्जिद के हक में फैसला है, और लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो। लेकिन आदरणीय धन्य बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाकर हिंदू मुस्लिम के विवाद को रोका और जो है जो कोर्ट का फैसला था उसको इम्प्लीमेंट कराने का सम्मानित साथियों काम किया। तो हमें आपको खुश होना चाहिए। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानता हूँ, हो रहा हूँ बताते हुए कि हम उस नेता के अनुयायी हैं, उसके पदाधिकारी हैं, उस पार्टी के उस नेता के अनुयायी हैं, उस नेता का शिष्य हैं, जिसको पूरी दुनिया में अच्छी सरकार चलाने के लिए सम्मानित साथियों जाना जाता है। लेकिन सम्मानित साथियों, क्या यहाँ ऐसा है? हम लोग क्या बहन जी को यहाँ मुख्यमंत्री बना के दे सकते हैं?
यहाँ से सांसद जिता के दे सकते हैं? नहीं सम्मानित साथियों, आज तक मुझे नहीं लगा। हम लोगों को समझना चाहिए कि आदरणीय महबूब कुमारी माथुर जी कार्यशैली से सीख लें, माननीय काशीराम साहब से सीख लें, क्योंकि अभी 2024 दूर है। लगभग ये मान के चलो नहीं चुनाव होना 2024 में, जब हमारे पास संगठन नहीं होगा तो हम कैसे सांसद जिता पाएंगे? तो पहले आप लोग जो हमारे सेक्टर के इंचार्ज है, आप लोग अच्छा जिले का संगठन बनाइए। मैं यहाँ हूँ 14 तक, उसके बाद नहीं आऊंगा और जिलावार मीटिंग करूंगा। जिले में इसी तरीके से संगठन की समीक्षा होगी, हर जिले में जाकर संगठन की समीक्षा करेंगे। और ये आपके लिए चुनौती का काम है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू विधानसभा यही है, सबसे ज्यादा विधानसभा इसी में है, और फिर साउथ में 31, उसके बाद फिर कम है। तो ये एक चुनौती का काम है। तो आपको बड़े अच्छे से हमें जिले को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट हम लोग यहाँ पर, यानी लगभग 8% के हिसाब से लगभग 8% विधानसभा किसी क्षेत्र में बैठती है, 8 से 10। अगर हम इस जिले को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा क्षेत्र हम लोग सम्मानित साथियों तैयार कर लेंगे। तो हम लोगों को जो जिले के लोग हैं वो अच्छे पदाधिकारी बनाएंगे, और फिर जिले के लोग, मैं भी बता देता हूं कि जो जिले के पदाधिकारी बन जाएंगे उन लोगों को फिर विधानसभा भी दे देंगे। आप लोगों को आप अपनी समझ से बांट देना कि आपको इतनी विधानसभा बनानी है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और आपको इतनी सेक्टर में जितने लोग लगे हैं आप लोगों के साथ साथ जिलाध्यक्ष को, जिला उपाध्यक्ष को, जिला महामंत्री को योग्यता के हिसाब से विधानसभा दे देना कि भी आपको इन विधानसभाओं की कमेटी बनानी है। 5-5 लोग वो लोग विधानसभा पर बनाएंगे। फिर जो विधानसभा की हमारी कमेटी बन जाएगी, उसके बाद विधानसभा के लोग सेक्टर की कमेटी बनाएंगे, और जब सेक्टर की कमेटी बन जाएंगी तो फिर हम लोग बूथ का संगठन तैयार करेंगे। सम्मानित साथियों, जब हमारा संगठन पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर हम कैडर की मीटिंग लेंगे, और कैडर की मीटिंग मतलब ये है कि सारी विधानसभाओं को पहले एक साथ बुलाएंगे और 2-3-4 घंटे का जो भी होगा वो कैडर देंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके बाद फिर हम प्रयास करेंगे, फिर उनको बांट लेंगे 5-5, 7-7 विधानसभाओं का कैडर, यानी कि फिर लोकसभा वाइज कैडर लगाएंगे। एक लोकसभा में जितनी विधानसभा आती है पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज लगेगा, और उसके बाद विधानसभा वाइज कैडर लगाने का काम करेंगे। उसमें हम सारी चीजों को बताने का सम्मानित साथियों काम करेंगे, क्योंकि हम लोग जब खुद ही घर से नहीं निकलेंगे, हम लोग क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो कैसे हमारे पदाधिकारी जुड़ेंगे? आप लोगों को मालूम है माननीय काशीराम साहब ने किस तरीके से, माननीय काशीराम साहब जी कहते थे कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सुनने वाले चाहिए, मुझे 100 नहीं 9 लोग चाहिए, लेकिन वो ऐसे लोग हों जो 100 के बराबर हो। तो फिर ये कहते थे कि मुझे 9 नहीं केवल 2 लोग चाहिए, लेकिन वो 2 ऐसे डिवोटेड हो जो मैं बताऊं उस पर अक्षर वो काम करें और पूरा मेहनत और कार्य से लग जाए। उनके कहने का मतलब ये था कि भीड़ करने से कोई फायदा नहीं है, केवल अच्छे होकर अगर आप लोगों को कम मिले तो भी काम चल जाएगा। उनके समझाने का मतलब ये था। और आपने सब लोग जानते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल यात्रा सम्मानित साथियों की थी, आप सब लोग जानते हैं। और कई तरह के नारे देकर राजनीतिक हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने का काम किया। और माननीय काशीराम साहब ने जब ये साइकिल यात्रा की थी, तो जब माननीय काशीराम साहब गांव से शहर से निकलते थे तो साथ में लोग साइकिल पर चलते थे, नारा लगाते थे। तो माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था सबसे पहले, देश हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब आप समझते हैं, हम इस देश के जो दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, SC, ST, OBC, हम इस देश के मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है, आगे बाहर से आए, आपने सामना वेद का इस्तेमाल कर इस देश को कब्जा कर लिया। तो ये कहते थे देश हमारा, तो देश के मूल निवासी है, देश हमारा, राष्ट्र हमारा। 85% लोग हमें, 85%, 15% लोग मनोवादी सामंतवादी पैसे वाले लोग हैं। देश हमारा, राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
दूसरा नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी वोट हमारी ज्यादा है और राज आप कर रहे हो, तो यानी कि देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और क्या कहते थे आगे? झुग्गी झोपड़ी करे पुकार, बदलो बदलो ये सरकार। झुग्गी झोपड़ी, हम लोग इन लोगों ने हमें इस तरीके से सामने वेद का इस्तेमाल करके ऐसा गुलाम बनाया, हम लोगों को शूद्र की श्रेणी में लाकर इन्होंने वहां पर हमारी बस्ती, हमारे पूर्वजों को जब मलमूत्र निकलता था, इनका जो बड़े पैसे वाले सामंतवादी वालों को कॉलोनी होती थी, मरे हुए जानवर में डाले जाते थे। इतिहास गवाह है हमारे पूर्वजों ने मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने का, सम्मानित साहब ने जीवन को बचाने का काम किया। कितना विवश होंगे उस वक्त लोग। और माननीय काशीराम साहब ने उस तरफ ध्यान देकर कहा कि झुग्गी झोपड़ी करे पुकार, बदलो बदलो ये सरकार। यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये पुकार कर रहे हैं कि सरकार को हमें बदलना है। और सम्मानित साथियों, ये कांग्रेस पे पार्टी के लोग हेलीकॉप्टर में चलते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे, और क्या कहते थे माननीय काशीराम साहब को देखकर कि माननीय काशीराम साहब के पैर में चप्पल नहीं, तो रबड़ की चप्पल पहनते थे, वही 50 रुपए वाली, 40 रुपए वाली। तेरे पैर में ढंग की चप्पल नहीं, तन पर ढंग के कपड़े नहीं, और शासन सत्ता के पास होने चले। साइकिल पर चलने वाला आदमी शासन सत्ता के पास देख रहा। ये कौन कहते थे? कांग्रेस पार्टी, आरएसएस के लोग और मनुवादी पार्टी के लोग। कि तन पर कपड़े नहीं, पैर में चप्पल ढंग की नहीं, चलने को गाड़ी नहीं, शासन सत्ता के ख्याल देखते हैं। लेकिन माननीय काशीराम साहब इन बातों को सिर्फ ध्यान में रखते थे और अपने टारगेट पर सम्मानित साथियों लगे रहते थे। नारा फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आप लोग जब जाओगे तो समझाने का काम करोगे कि देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, झुग्गी झोपड़ी करे पुकार, बदलो बदलो ये सरकार। और आगे क्या कहते थे कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, वोट से लेंगे पीएम और सीएम। यानी हम वोट डालेंगे, वोट हमारी ज्यादा है तो वोट से हम ना सीएम बनाएंगे, पीएम बनाएंगे। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस तरीके के नारे माननीय काशीराम साहब ने साइकिल यात्रा में लगाए और मूवमेंट को आगे ले जाए। गांव गांव जाकर माननीय काशीराम साहब ने जन जागृति करने का काम किया, संगठन को बढ़ाने का काम किया। आप लोगों के पास मोटरसाइकिलें, कार हैं, तमाम चीजें आप लोगों के पास हैं। आज कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उन लोगों को मदद करनी चाहिए और संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। और माननीय काशीराम साहब ने आगे क्या कहा? इतना ही सम्मानित साथियों, वो समय के हिसाब से आप वैज्ञानिक थे, राजनीतिक हिसाब से, माहौल के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से नारे देने का माननीय काशीराम साहब सम्मानित साथियों काम करते थे। माननीय काशीराम साहब ने आगे कहा कि शिक्षा, रक्षा और सम्मान चाहिए। क्या कहा? शिक्षा, सुरक्षा, रक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा, रक्षा, सम्मान चाहिए हमारे समाज को। कि शिक्षा, रक्षा, सम्मान चाहिए, इंसान इंसान एक बराबर हो, ऐसा महान हिंदुस्तान चाहिए सम्मानित साथियों। कि हम लोगों को ऐसा हिंदुस्तान बनाना है कि जहां पर सब लोग बराबर हो। शिक्षा, रक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इंसान इंसान एक बराबर हो, ऐसा भारत महान चाहिए सम्मानित साथियों। इस तरीके के नारे माननीय काशीराम साहब ने लगा। फिर आपको समझ लो, चाहे लिख लो, क्योंकि ये आप जब जाएंगे तो ये बोलने पड़ेंगे आप लोगों को कि शिक्षा, रक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इंसान इंसान बराबर हो, ऐसा भारत महान चाहिए। ये माननीय काशीराम साहब ने जब बीच से कई गांव से, गली से निकलने का, गुजरने का काम करते थे तो नुक्कड़ सभाएं माननीय काशीराम साहब सम्मानित साथियों लगाते थे। और आप ये समझिए कि कितनी मेहनत का काम माननीय काशीराम साहब ने किया साइकिल पर चलकर। और आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ, जाति तोड़ो समाज जोड़ो।
आगे उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अब जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उनका ये मानना था, ये कहना था कि जातियां केवल जानवरों में होती हैं, इंसानों में नहीं होती। आप वैज्ञानिक थे, हर चीज को मानव काशीराम साहब ऐसे उदाहरण दृष्टांत यानी कि इस तरीके के एग्जाम्पल देते थे कि सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाता था और उसको साबित करके तर्कसंगत बात करके मानव काशीराम साहब उसको साबित भी करके दिखाते थे। और उन्होंने कहा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो उन्होंने ये कहा कि जातियां इंसानों में नहीं होती, जातियां केवल जानवरों में होती है। अब एक ने कहा कि ये कैसी बात करे मानव काशीराम साहब, उन्होंने कहा मैं साबित करके दिखाऊंगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक गीले खेत से जिसकी मिट्टी मुलायम हो, गीले खेत से सभी जानवरों को आप निकाल लो, हाथी को, घोड़े को, शेर को, गाय को, गधे को, भैंसे को, किसी को भी निकालो। एक दूसरी तरफ से इंसान को निकालो, तो इधर जिधर से जानवर निकलेंगे उनका ये कहना था कि उनके पैरों को निशान के देखकर, उनके पैरों के निशान को देखकर कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि हाथी के प्रजाति के जानवर के पैर के निशान है, ये घोड़े प्रजाति के जानवर के पैर के निशान है, ये शेर प्रजाति के जानवर के पैर के निशान है, ये गाय प्रजाति के, ये कुत्ते के, ये बिल्ली के पैरों के निशान है। दूसरी तरफ उसी गीले खेत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और 6,743 जातियों के लोग जिन्होंने मनवादी लोगों ने बांट दिया, लोगों के भी सावधान का इस्तेमाल करता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी या अपर कास्ट के सब लोगों को किसी को भी निकाल दिए, तो दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ये नहीं बता सकता है कि ये किस जाति और किस धर्म के व्यक्ति के पैर के निशान है। इतना बड़ा साइंटिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ, तो ये प्रमाण देकर बताया मानव काशीराम साहब ने कि जातियां केवल जानवरों में होती हैं, इंसानों में कोई जाति नहीं होती। सम्मानित साथियों, तो हमें इन सब चीजों को देखकर, समझकर, तर्कसंगत बात कहकर लोगों को जोड़ने का काम सम्मानित साथियों करना पड़ेगा, तब ये संगठन सम्मानित साथियों आगे बढ़ेगा। ऐसा संगठन यहां तक नहीं आ गया। मानव काशीराम साहब की प्रतिज्ञा दी, आप सब लोग जानते हैं कि जब तक मैं जीऊंगा इस देश में रहने वाले जन, किसान, मजदूर और के वोट पास के लिए लड़ता रहूंगा। और घर छोड़ा परिवार छोड़ा, घर छोड़ा परिवार छोड़ा, और गांव-गांव मानव काशीराम साहब गए, शहर गए, सब लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। हम तो अम्बेडकरवादी हम लोगों को नहीं मानते। एक नाटक आपने देखा होगा, रामायण सुना होगा, काल्पनिक, उसको महाभारत में देखा होगा। तो महाभारत में एक कैरेक्टर है भीष्म, एक कैरेक्टर है भीष्म जो हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधे थे। चाहे पुत्र का चीरहरण हो गया, कुछ हो गया, वहां बनकर के पट्टी बंधी थी। उन्होंने फिर उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए, केवल हस्तिनापुर के लिए मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं, शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा। पता नहीं वो तो नाटक था या क्या था। अगर वास्तव में किसी व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ली, किसी इंसान ने, और उस प्रतिज्ञा को अक्षर अक्षर निभाने का काम किया, वो कभी घर नहीं गए जब से घर छोड़ा था। माता जी का देहांत भी हो गया था, तो जब उधर से निकल रहे थे पंजाब से, तो रोहतड़ जिले के जहां के रहने वाले थे आप, वहां के उनके परिवार के लोग रोहतड़ जिले के चौराहे पर जहां से साइकिल रैली करनी थी, वहां अपने परिवार के लोगों से मिले थे। नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अगर किसी ने भी प्रतिज्ञा की भारत की धरती पर, अगर कोई राजनीति के, उन्हें तो भीष्म पितामह कहते थे, अगर भारत की धरती पर कोई भीष्म पितामह है, तो राजनीतिक धरती, भारत की धरती पर वो राजनीतिक भीष्म पिता मानव काशीराम साहब हैं। सम्मानित साथियों को अक्षर अक्षर निभाने का सम्मानित साथियों काम किया। रात दिन लगकर जगकर संगठन को तैयार करने का काम किया। और आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली के कोटकरम पर जो है, दिल्ली के कोटकरम पर आप सब लोग अच्छे से जानते, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, मैं बता ही रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सम्मानित साथियों उन्होंने विधिवत घोषणा की। उससे पहले फिर को भी बताऊंगा, जब कैडर हुआ पहले उन्होंने बामसेट बनाई, उसके बाद DS4 बनाई, वो सब चीजें मैं बताऊंगा आपको जब कैडर होगा। लेकिन मैं आज संगठन की बात कर रहा हूँ, तो जो कोटेशन केवल संगठन की है, उन
संगठनों को सम्मानित साथियों मैं आपके बीच रख रहा हूँ। समय समय पर माननीय काशीराम साहब ने हम लोगों को बीच जनजागृति पैदा करने के लिए बहुत सारी बुक्स भी लिखी। एक बुक्स उसमें चमचा युग, तो उसमें चमचों की परिभाषा माननीय काशीराम साहब ने बताइए। कुछ चमचे नेता का दिमाग खराब कर देते हैं, आसपास लगे रहते हैं, और चमचे की क्वालिटी होती है कि जिस बर्तन में रहता है जब तक उसे खाली नहीं कर देता तब तक वो चैन से बैठने का काम नहीं करता। तो संगठन में इस बात का आप सब लोगों को ध्यान रखना है, चमचे टाइप लोगों को संगठन से दूर रखना है। तो ये चमचे आपके ताकत देते हैं, आपसे आपका नाम लेकर, महापुरुषों का नाम लेकर एक ताकत पैदा करते हैं, फिर दूसरी पार्टियों में जाकर सपोर्ट करके बहुजन समाज पार्टी को विरोध करने का काम करते हैं। सम्मानित साथी, बहुत सारे लोगों ने माननीय काशीराम साहब को निराशा रोकने का काम किया था, परंतु जो बोधिसत्व बाबा साहब का नाम भी काम के रास्ते में जो रोड़े अटकाने का काम किया था, चाहे वो कचरोकर हो चाहे बाबू के जीवन नाम हो, परंतु जो बोधिसत्व बाबा साहब के राह में रोड़े अटकाने का काम किया था। और माननीय काशीराम साहब को तो लोगों ने अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी, अमेरिका का CIA का एजेंट तक कहा था, और माननीय काशीराम साहब ने एक्सेप्ट करा कि हाँ मैं अपॉर्चुनिस्ट हूं, मैं अवसरवादी हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने 1993 में बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी से समझौता कर लिया था, और पहली बार मिली सरकार बनी थी। हमारे 11 मिनिस्टर सम्मानित साथी उत्तर प्रदेश में बने थे। माननीय काशीराम साहब क्योंकि आप जो है वैज्ञानिक थे, तो एक्सपेरिमेंट करने का उनका हमेशा लास्ट तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो लोग पेपर वाले मनवादी लोग उन्हें अपॉर्चुनिस्ट CIA का एजेंट पता नहीं क्या क्या कहने लगे। उन्होंने कहा बाकी चीज में कोई नहीं मानता, हाँ मैं अवसरवादी एक्सेप्ट करता हूँ। कहा कि मैं अवसरवादी हूँ, मैं अवसर की तलाश में रहता हूँ, मैं अवसर नहीं होता तो बनाता हूँ। तो उन्होंने किस चीज का अवसर कि मैं हमेशा बहुजन समाज को ताकत में लाने के अवसर में रहता हूँ, अवसर नहीं होता तो बनाता हूँ, और जब भी मौका मिलता है मैं बहुजन समाज को, बहुजन समाज पार्टी के लोग समाज को शासन सत्ता में काबिज करने का सम्मानित साथियों बात करता हूँ। और उनके टाइम में सम्मानित साथियों 93 में तो 11 मिनिस्टर बने थे, 95 में 3 यूनिट, 95 में बहन कुमारी माता जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, 1997 में मुख्यमंत्री बनी, और सम्मानित साथी 2002 में भी मुख्यमंत्री बनी। माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि हाँ मैं अपॉर्चुनिस्ट मौके की तलाश में रहता हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बहुजन समाज को शासन सत्ता तक पहुंचाने का सम्मानित साथियों काम करूंगा। तो इतने बड़े सोच के व्यक्ति के हम लोग अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं, तो हम लोगों को भी ऐसी सोच सम्मानित साथियों रखनी पड़ेगी। और सम्मानित साथियों, मेरा ये मानना है कि तमाम लोग, राजनीतिक लोग, और ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन लोगों ने जिनके नाम पर सरकार बनाने का काम किया, उन्हीं के नाम को बदनाम करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम के नाम पर सरकार बनाई, राम के नाम पर एजेंट छोड़े, और राम के नाम को ही राम के नाम की मर्यादा को तार तार करने का काम किया। और सम्मानित साथियों, वो भी अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो शायद वो जिन्होंने राम के नाम को बदनाम करने का काम किया है, जिन लोगों ने हमारी बहन बेटी के अस्पताल से खेलने का काम किया, वो केवल परंतु जो बोधिसत्व बाबा साहब के कारण बनाए संविधान के कारण उनकी सलाहों से पीछे गए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा धर्म का चक्कर चलाया, इस तरीके से एक्सरसाइज करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर, यानी कि जो पूजने की चीज है उसको तो बहाया जा रहा है, और जो फेंकने की चीज है उसको पीने का और खाने का। आपने देखे होंगे अगर भक्त कोई गोबर खा रहा है, कोई गोमूत्र पीने का सम्मानित साथी काम कर रहा है। इस तरीके से इन लोगों ने हिप्नोटाइज भारत की जनता को कर दिया, हिप्नोटाइज धर्म के नाम पर इस तरीके से कर दिया कि लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना है। जो पीना चाहिए उसको नालियों में बहाने का काम करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जो अमृत है, और जो नहीं पीना चाहिए उसको फेंकना चाहिए, उसको पीने का काम इन लोगों ने इस तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया है। यानी कुछ लोगों को इन्होंने धर्म के नाम पर मानसिक अपंग क्या
कि जैसे मेरा हाथ अगर काम नहीं करता तो क्या कहेंगे कि भाई ये हैंडीकैप है, इसका हाथ काम नहीं करता। किसी का पैर नहीं काम करता तो कहेंगे ये हैंडीकैप है, इसका पैर नहीं काम करता। जिसका दिमाग काम नहीं करता उसे क्या कहेंगे? मानसिक अपंग कहेंगे ना। और मानसिक अपंग कहते जो लोग मानसिक अपंग हो जाते हैं वो असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते। अब असली नकली क्या? हमारे बहुत सारे लोग हैं जो असली और नकली में फर्क नहीं कर पाते। अब असली और नकली में फर्क, जबकि जो धर्म के अड़ंबर में फंस जाएगा, षड्यंत्र में फंस जाएगा, वो कभी असली नकली में फर्क नहीं कर सकता और मार खा जाएगा। यदि दोस्त और दुश्मन की पहचान जिससे नहीं होगी वो हमेशा नुकसान में जाएगा। जिसने दोस्त और दुश्मन असली नकली की पहचान कर ली वो हमेशा आगे बढ़ जाएगा। और ये धर्म के नाम पर ऐसा अड़ंबर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैलाया है कि हम असली नकली में फर्क नहीं कर पाते और असली नकली बाबा कौन इसका फर्क नहीं कर पाते। हमारी बहन बेटियों के चक्कर में आ जाती हैं। शादी नहीं हो रही, बाबा के पास चले गए, आज फ्रूट ले आना, आज 5 किलो मिठाई ले आना, सोना ले आना, चांदी ले आना। बाद में पता लगा उनके साथ रेप कर दिया। FIR करने गए थे, FIR नहीं हुआ। सम्मानित साथी, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारी समाज के अनुसूचित जाति जनजाति की बहन बेटियों को टारगेट बनाया, ओबीसी समाज की बहन बेटियों को, अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अन्ना होती थी। पहले जो धर्म गुरु होते थे, चाहे वो बलात्कारी हो, शराबी हो, अत्याचारी हो, वो जो चाहे करे उसके साथ कुछ नहीं होता था। जब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भारतीय संविधान को बनाया, सभी धर्मों को बराबर किया, हिंदू और मुस्लिम को बराबर किया, सिख और ईसाई के धर्म को बराबर किया, बहन बेटियों को पुरुष के बराबर खड़ा किया। और तब से अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की IPC की धारा 376 के खिलाफ उनके लिए कार्रवाई होने का काम किया। तो सबसे पहले जेल कौन गए? सबसे पहले कौन से नकली बाबा जेल गए? सब लोग जानते हैं, आशा राम सबसे पहले जेल गए। दूसरे नंबर पर कौन जेल गए बलात्कार में? रामपाल। तीसरे नंबर पर कौन जेल गए? राम रहीम। सुनना, राम को छोड़ा ना, रहीम को थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सम्मानित साथियों, जिनके नाम पर इन्होंने सरकार बनाई, जिनके एजेंट थे, जो भारतीय जनता पार्टी को आगे करके चल रहे थे, उनको इतनी छूट दी गई। उनके पास मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के पैर छूने जाते थे। वीडियो आप लोगों ने सब देखी होंगी। वो संत होकर हेलीकॉप्टर में चलने का काम करते थे, जबकि असलियत में वो भेड़िए थे। उन नकली बाबाओं को अगर जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किसने किया? हमारे असली बाबा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए विधान के द्वारा वो जेल के सलाखों के सम्मान के साथ पीछे गए। तो हम लोग असली बाबा कौन है? अरे असली बाबा जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब हैं, जिन्होंने हमें भारतीय संविधान लिखकर इतनी सारी ताकतें दी। हमारी बहनें, हमारी माता बहनियां बैठी हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान लिखने से पहले, बनने से पहले, लागू होने से पहले आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। गुलाम भारत में कोई वैल्यू नहीं थी। भारतीय संविधान बनने से पहले केवल आपको चूल्हा और चौका तक सीमित रखा जाता था। या आपको सम्मान मिलता था जब आप बेटा पैदा कर देती थी। अगर एक बेटी के बाद दूसरी बेटी पैदा हो गई तो औरत होकर औरत ही, यानी आपकी सास और ननद ही आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करने लगे, लगती थी। लेकिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भारतीय संविधान में महिला और पुरुष को बराबर करने का काम किया। सम्मानित साथियों, कल्पना चावला अगर सबसे पहले अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला सबसे पहले अंतरिक्ष में गई, क्योंकि बाबा साहब के संविधान बनाने के बाद हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक कोई क्षेत्र हो, महिला और पुरुष को समान अधिकार दे। कल्पना चावला बड़ी साइंटिस्ट बनी और सबसे पहले महिला साइंटिस्ट अंतरिक्ष में गई। कल्पना चावला सबसे पहले अंतरिक्ष में गई। श्रीमती पाटिल इस देश की सबसे पहली राष्ट्रपति बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार नहीं कई बार इस देश की प्रधानमंत्री बनी। जयललिता जी और ममता बनर्जी। अगर आप भी, मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से, अगर आप भी एक 3-4 बार अगर मुख्यमंत्री अगर वेस्ट बंगाल की बनी है तो किसी देवी देवताओं की देवी वो दे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब है। और एक बार नहीं 4-4 बार आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी भारत के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी। और श्रीमती द्रौपदी महामहिम
द्रौपदी मुर्मू अगर देश की राष्ट्रपति बनी है तो वो देश किसी देवी देवता की नहीं, हमारे भगवान परम पूज्य मोदी के बनाए संविधान के कारण सम्मानित साथियों और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब के जीवन संघर्ष के कारण आप लोगों को ये सम्मान साथियों मिला है। तो मैं फिर वही लौट के आ जाता हूँ सम्मानित साथियों, मानसिक अपंगी की बात कि जब धर्म के चक्कर में, आडंबर के चक्कर में हमारी बहन बेटी, हमारे भाई ग्रेजुएशन कर ली, लॉ ग्रेजुएट हो गए, LLM कर लिया, बाबा नौकरी नहीं लग रही, लाओ भाई 11,000 रुपए, बाबा मेरा काम नहीं बन रहा, लाओ 21,000 रुपए। इस तरीके से पैसे ऐड करने का काम करते हैं और असली नकली में फर्क नहीं कर पाते, मूर्ख बन जाते हैं। और हम जो असली नकली में हम लोग फर्क नहीं कर सकते तो आगे सम्मानित साथियों कैसे क्या करेंगे। तो इस धर्म से बाहर निकलकर केवल प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें हैं प्रैक्टिकल रूप से सम्मानित साथियों उन पर अमल कर जो बाबा साहब ने कहा, माननीय काशीराम साहब ने कहा है और समय समय पर जो रही का आदेश आता है उन पर अमल कर आप अपने आप को, अपने विवेक को, अपने स्टेट को सम्मानित साथियों आगे अपनी जनरेशन को आगे ले जाने का सम्मानित साथियों काम कर सकते हैं। और सम्मानित साथियों हमसे ऐसे लोगों से अच्छे तो कुत्ते बिल्ली, वो असली नकली में फर्क समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई पत्थर का खरगोश बनाकर थाली में रख दूं और कुत्ते से उसे पकड़ ले तो पकड़ लेगा क्या? उसे पता है पत्थर का मेरा दांत टूट जाएगा, मेरा मुंह टूट जाएगा। अगर बिल्ली मैं पत्थर का कबूतर बनाकर ऊपर पेड़ पर रख दूं और बिल्ली से उसे पकड़ ले तो पकड़ेगी क्या? वो नहीं पकड़ेगी, उसे मालूम है कि ये नकली है, मेरा मुंह टूट जाएगा, दांत टूट जाएगा। अरे हम असली बाबा को छोड़कर नकली बाबा के चक्कर में रखते हैं और हम सही नतीजे पर सम्मानित साथियों नहीं पहुंच पाते हैं। इंसान बड़ा धर्म के चक्कर में आकर, ह्यूमन यानी मनुष्य धर्म के चक्कर में आकर इतना बावला हो जाता है जिस मूर्ति को वो स्वयं बनाता है और उसी को फिर कहता है कि मुझे कुछ वोट दे दो, उसी के हाथ जोड़कर उससे MP बनने की, सांसद विधायक बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की सम्मानित साथियों प्रार्थना करता है। तो धर्म में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको आडंबर में उलझा कर रखा है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे असली देवी देवता, हमारे असली कौन है सम्मानित साथियों, जो हमारे सामने चित्र रखे तो चित्र नहीं लगे, जिनका शुरू में मैंने नाम लिया कि करुणा के सागर तथागत बुद्ध हुए और छत्रपति साहू महाराज, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, तमाम तरह के हमारे बाबा साहब माननीय काशीराम साहब सम्मानित साथियों, इन लोगों के जीवन संघर्ष से हम लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने और आज सम्मान के साथ आप लोग यहाँ पर विराजमान है। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में यहाँ विराजमान है। मैं जो हूँ उनका अन्य प्रभारी के रूप में आप लोगों को सम्मान के साथ मैं यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ, आप लोगों को जो है आप लोगों को स्पीच देने का काम कर रहा हूँ। तो सम्मानित साथियों हमें इस षड्यंत्र से, इस आडंबर से बचकर हमें जो हमारे संत महापुरुषों ने सम्मानित साथियों को बताया उस पर काम करना चाहिए। माननीय काशीराम साहब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी सम्मानित साथियों हम लोगों को देने का काम कर रहे हैं। हमें इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें रात दिन एक कर हमें संगठन को तैयार करना चाहिए। जब तक अच्छा संगठन नहीं होगा तब तक हम किसी भी तरह का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। संगठन में अच्छे, ईमानदार, निष्ठावान पदाधिकारी आप लोग बनाइए। और सम्मानित साथियों हम और धर्मवीर अशोक जी नेक्स्ट बंगाल को देखने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सांसद विधायक बनने नहीं आए, हम लोग न सांसद बनने आए, न विधायक बनने आए, न हमें नगर पंचायत का अध्यक्ष बनना, न मेयर बनना है। हम लोग को आपको एक्सपीरियंस आनंद बहन कुमारी मैम ने बताया, हमारे एक्सपीरियंस का लाभ लीजिए। हमने उधर उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम साहब के बातों पर, उनके विचारों पर चलकर बहन कुमारी महाराज जी का आदेश उठवाकर 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। उसका हमारे जो है आप लोग एक्सपीरियंस का लाभ लें, अच्छा संगठन बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए, बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने का सम्मानित साथियों काम करें। और सम्मानित साथियों हम लोगों को बहुत सारे लोग ये नहीं बता पाते, मेरे समझ में या सुनने में आया है कि हम लोग दलित समाज से, मेरे सुनने में भी कई जगह लोग यही नहीं बताते कि हम दलित समाज से। क्यों आप लोग इतना करते हो? अरे आप कोई ऐसे वैसे हो, उनके अनुयायी नहीं हो। सम्मानित साथियों परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अनुसरण करके चले। जैसे मैंने अभी बताया कि एकमात्र राजनीतिक संत अगर कोई है, यह राजनीति के बचे पितामह है तो सम्मानित साथियों माननीय काशीराम साहब है। दूसरी तरफ अगर हम देखें परम पूज्य माननीय
परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिनको दुनिया जानती है। उनका खून हमारे प्रभु में सम्मानित साथियों, उनके अनुयायी हैं, उनके समाज से, वो भी दलित समाज से, हम भी दलित समाज से सम्मानित साथियों। तो जब भी बाबा साहब का नाम आता है तो हमें गौरव अनुभव होता है। इसलिए आप सब लोग नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। बराक ओबामा धरती पर सबसे शक्तिशाली इंसान कौन होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति होता है कि नहीं? हाँ या ना बताइए। धरती पर सबसे शक्तिशाली अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका में पैदा होते तो हम सूर्य का नाम बदलकर अंबेडकर रख देते, क्योंकि उनके शिक्षा के प्रसार से पूरा वर्ल्ड में हमारा है सम्मानित साथियों। और प्रमाण भी उन्होंने दिया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 साल जो छात्र पढ़े उनका शोध किया गया, यानी उन पर काम किया गया, और उनमें 10 मेधावी छात्रों की सूची बनी। तो सम्मानित साथियों, आपको जानकर गर्व का अनुभव, गौरव का अनुभव होगा कि जो टॉप 10 छात्र थे, स्टूडेंट थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उनमें पहले नंबर पे ना तो कोई अमेरिकन था, ना कोई रशियन था, ना कोई जैपनीज था, ना फ्रांस का था, ना ब्रिटेन का था, ना न्यूजीलैंड का, ना ऑक्सफोर्ड, कहीं का नहीं सम्मानित साथियों। पहले नंबर पर किसी का नाम था तो महान भारतीय सम्राट परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का नाम सबसे पहले नंबर पर था। और हम लोग उनके अनुयायी हैं तो हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए सम्मानित साथियों। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, अरे वो एक ऐसे राजनीतिक योद्धा है जो यहाँ से विदा होने के बाद, मरने के बाद भी लोग उनसे लड़ रहे हैं। या किसी और महापुरुष के बूथ या मूर्तियां तोड़ी जाती है? नहीं तोड़ी जाती ना। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ऐसा करके गए कि मनुवादी लोग उनसे आज भी परेशान है, उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। यानी मरने के बाद अगर कोई योद्धा लड़ने का काम कर रहा है तो वो आपके हमारे भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सम्मानित साथी प्रयोग नहीं, वो हमें शर्मिंदा होते नहीं। हमें हमेशा बताना चाहिए कि उनके अनुयायी वो हमारे महापुरुष हैं। इतना बड़ा सम्मानित साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी आत्मकद मूर्ति बनी है, नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज। यानी दुनिया में अगर ज्ञान का प्रतीक कोई है तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब है, कोई और सम्मानित साथियों नहीं है। वो हम उनके अनुयायी हैं तो हमें बड़े गर्व से उनका नाम लेना चाहिए। माननीय काशीराम साहब हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे हमारे जितने भी संत महापुरुष, संत रविदास, काशीदास, बिरसा मुंडे, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, तो सभी का नाम हमें बड़े सम्मान के साथ लेना चाहिए। उनके बताए रास्तों पर सम्मान के साथ चलना चाहिए। और हमारे सभी संत महापुरुषों की एक इच्छा रही है, वो इच्छा ये है कि एक न एक दिन हम अपना गौरव वापस, क्योंकि हम लोग इस देश के मूल निवासी राजा थे। 5000 साल पहले हम लोगों का शासन यहाँ सब लोग जानते, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारे इतिहास को डिस्ट्रॉय, हमारे इतिहास को तोड़ कर पेश किया जा रहा है सम्मानित साथियों। लेकिन हम लोगों को गली घर गाँव जाकर इसको बताने का काम करना है कि हम उनके अनुयायी हैं। हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें पूरी तरीके से सम्मानित साथियों बताने का सम्मानित साथियों काम करना है। तो हमारे संत महापुरुष के आंखों में केवल एक सपना है, जैसे सम्राट अशोक ने पूरे विश्व पर शासन किया था, तो भारत पर एक दिन हमारा शासन होगा। कोई ना कोई दलित पर्सनैलिटी एक न एक दिन दिल्ली के लाल किले पर से तिरंगा फहराने का काम करेगी, और वो शख्सियत कोई और नहीं, वो शख्सियत आदरणीय बहन कुमारी मैडम है। सम्मानित साथियों को सम्मानित साथियों का कोई नहीं, पूरे देश की जो नजर इस वक्त बहन कुमारी मैडम जी के रूप पर है। अरे हम लोगों ने उधर सरकार हुआ, इन्होंने हम लोगों को सामना वेद का इस्तेमाल करके हम लोगों को छलने का सम्मानित साथियों काम किया। क्योंकि उधर ममता बनर्जी अलग लगी है, उधर वो बिहार वाले वो अलग लगे हैं, उधर तुम्हारा अखिलेश यादव अलग लगे हैं, तो सब अपना हमारे शरद पवार लगे हैं। लेकिन साइलेंट नजर ये देख रहे हैं कि आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी का क्या रुक है। तो सम्मानित साथियों, आज भी
बहन कुमारी नायक जी को दूसरे लोग प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं, लेकिन ये जब ही संभव हो पाएगा जब हम लोग अच्छा संगठन बनाकर यहाँ से कई सांसद जिताकर अच्छा संगठन बनाकर और सांसद जिताकर आदरणीय बहन कुमारी नायक जी की गोदी में डालने का काम करें। तो जो हमारे जो सम्राट अशोक का जो के बाद जो हमारे संत महापुरुषों का संत रविदास, संत कबीरदास, गुरु घासीदास, चाहे बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब मानवर काशीराम साहब का भी सपना था, वो हम लोग तभी साकार कर सकते हैं जब हम लोग अच्छा संगठन बनाएंगे, तो हम लोग प्रदेश में सरकार बनाएंगे, अच्छा संगठन बनाएंगे, तो हम लोग सांसद जिताकर हम लोग सभा में भेजने का काम करेंगे और आदरणीय बहन कुमारी नायक जी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो है वो आसान करने का सम्मानित साथियों काम करेंगे। तो आप सब लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जो लोग पदाधिकारी हैं वो अच्छे एजुकेशन जिनकी अच्छी हो, पढ़े लिखे हो, डिवोटेड हो, आइडियोलॉजी के बारे में जानते हो, निष्ठावान ईमानदार हो, ऐसे ही लोगों को आप पद पर आसीन करें। जिले की कमेटी को बनाएं तो विधानसभा कमेटी अच्छी बन जाएगी, विधानसभा कमेटी बना ली सेक्टर की कमेटी अच्छी बन जाएगी, और सेक्टर की कमेटी बना ली तो बूथ की कमेटी अच्छी बन जाएगी। इतिहास गवाया है अकेला चला भाड़ नहीं हो सकता, जब तक सेना नहीं होगी मजबूत, जब तक युद्ध जीता नहीं जाता, तो जो जिले पर है वो जिलाध्यक्ष सेना जिले के सेनापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के सेनापति हैं, सेक्टर के अध्यक्ष सेक्टर के सेनापति हैं, और बूथ का अध्यक्ष बूथ का सेनापति है, और प्रदेश के सेनापति आपके सामने सम्मानित साथी विराजमान है। अगर अपना अपना काम सारे सेनापति अपना अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करें, तो जिस राजा के सेनापति मजबूत होते हैं उसे राज करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर हमने चाहे वो स्टेट के सेनापति हैं, चाहे जिले के सेनापति हैं, चाहे विधानसभा के सेनापति हैं, सेक्टर के सेनापति हैं, बूथ के सेनापति हैं, अगर उन्होंने अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से निभाया, अपने काम को अंजाम देने का काम किया, तो देश की राजा आदरणीय बहन कुमारी नायक जी 2024 का होंगी। मैं आपके दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो आप लोगों का आप लोग यहाँ मैंने समीक्षा की, मैंने एक बात आप लोगों के सामने रखी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं संत कबीरदास, गुरु घासीदास के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं माता सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं नारायण गुरु के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत बने, तो 2024 में के लिए आपको मजबूत संगठन बनाकर यहाँ के सांसद जिताकर बहन जी को झोली में डालने का काम करना है। तो जो हमारे संतों महापुरुषों का सपना है वो अपने आप ही साकार होने का सम्मानित साथ काम करेगा। तो अंत में आप सभी के यहाँ पहुंचने पर मैं आपका जो लोग यहाँ आए हैं उनका हृदय की गहराई से मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो बुद्धाय। হ্যালো, আপনারা আজকে তো প্রচন্ড গরম, আজকে সামনে থাকবে, তাই আমাদের কলকাতা ডিপার্টমেন্টকে যেটা বলছে আপনার এই গরমের মধ্যে এখানে প্রায় 100 উপরে আছে, তো হচ্ছে আমাদের 100 উপরে আছে এসছেন। আপনারা কষ্ট করে জন্য আপনাদেরকে সকলকে আমাদের জেলা রাজ্যের তরফ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবার শেষ করার আগে আপনারা অনেকজন এসছেন, কারণ আমরা একটু যেতে হবে, আপনাকে নিতে এসেছি আপনারা। তো শেষ করার আগে বলতে চাই এটা অর্গানাইজেশনাল মিটিং তো, এবং এখানে সবাই আমাদের পার্টির সঙ্গে কানেক্টেড লোক এসছে। তো আপনাদের জন্য এটা বলা হচ্ছে যে দেখবেন যে বহুজন সমাজ পার্টি আমি যখন থেকে প্রেসিডেন্ট বা চার আগের থেকে হয়েছি, তো বর্তমানে প্রচুর লোক, বেশ কিছু লোক আমাদের বিরোধিতা করে।
এলাকাতে কাজ করতে আম্বেদকর মিশন এসপিসি অর্গানাইজেশন, ওই লোকগুলো আমার বিরোধ করে। আর ওই বিরোধটা ওই কাজটা আমি আমাদের পার্টির লোকদের যারা করে তাদেরকে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বারণ করি। মানে স্টাফ থাকবে বিএসপি, কাজ করবে আম্বেদকর মিশন, আর হচ্ছে এসপিসি অর্গানাইজেশন করবে। এটা তো আমাদের বিএসপি কাজ করছি। এটা অনেক সময় আগে, অনেকদিন আগে ফলতায়ের মতো তারা বিএসপি করতো, কিন্তু আম্বেদকর মিশনের মিটিং করতো, ওখানকার সিপিএমের নেতা রাখতো, আর লোকের কাছে কানেকশন করতো বিএসপি, প্রত্যেকটা তো বিএসপি কাজ করছে। রিসেন্ট একটা আছে, আমাদের পদাধিকার নাম বলবো না, একটা কোনো সোশ্যাল সাপোর্টের মিটিং করেছে, যেখানে আমাদের জোনের ইনচার্জ জেলা সভাপতি নিচে বসে আছে, পার্টির লোকরা নিচে বসে আছে, আর যারা মঞ্চে আছে তাদেরকে ডাক্তার লোক আমাদের পার্টির লোক নিয়ে গেছে, টেলিফোনে বলছে আরে পার্টির মিটিং হলো, আসলে না। আমি তাদের বললাম যে পার্টির মিটিং এ স্টেজে গেছিল, স্টেজে পার্টির কোনো পদাধিকারী ছিল? বলে না। তাহলে আমাদের পার্টি জোনের ইনচার্জ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট তার পদ কোথায় নিয়ে গেছে? যাদের পিছনে কোনো লোক নাই, এবং সঙ্গে পার্টির লোক নিয়ে গেছে শোনার জন্য। তো কানসিয়াসটির বক্তব্য শুনবেন, এক বৈদিক বক্তব্য করেন, বৈদিক বক্তব্য হচ্ছে ওই সামাজিক সংগঠনের লোকের বক্তব্য ভালো, সেজন্য শুনতে গেছে। তো পার্টির পদাধিকারীরা পার্টিটাকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে আসছে, এই টাইপের লোক হচ্ছে আমার বিরোধিতা। কারণ আমি তাদের সত্য মেরে আমি তা বলে ভাই পথ ছেড়ে তুমি যাও করো, কোনো অসুবিধা নাই, সামাজিক সংগঠন করতে পারো, কিন্তু পথ ছেড়ে। আর পদের সংখ্যার কথা পার্টির কাজ করবো, ওখানে হচ্ছে পার্টির নেতারা স্টেজে থাকবে, যারা সামাজিক সংগঠন আমি চাবে। কিন্তু এটা কেন? কিছু লোকের পয়সা নেয়, তো ওই 200 টাকার জন্য শুনতে গেছে, ওই শুনতে যদি তার বক্তব্য না দেয় তো 200 টাকা দেবে না। তো এই লোকটা বিজেপি যদি বলে তোর 5 লাখ টাকা দেবো, আমাদের পার্টির লোকদের নিয়ে বিজেপি মিটিংয়ে চলে যাবো, সামাজিক সংগঠন যেতে নিচে বসতে যায়, তো ওই লোকদের ওই পদাধিকারীদের যদি বিজেপিরা বলে যে তোদের পার্টির লোক নিয়ে আমি তোদের 5 লাখ টাকা দেবো, সব নিয়ে চলে যাবে পার্টি। এই টাইপের লোক আছে বহুজন সমাজ পার্টি যারা, এরা হচ্ছে আমার বিরোধিতা করে। সুতরাং এখন আমাদের পার্টির এখানকার লোকরা যেহেতু অন্য উত্তরপ্রদেশ বা বিহারে এরা বেশি সচেতন পার্টি, উত্তরপ্রদেশের হিন্দি বলার লোক, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানার লোক সামাজিকভাবে তারা পিছনে থাকছে, আমরাও আছে। তারা শিক্ষাগতভাবে তারা পিছনে আছে, আর্থিকভাবে পিছনে আছে। পশ্চিমবঙ্গের সেকুলার কাস্টরা আর্থিকভাবে উন্নতি আছে, এডুকেশনের উন্নতি আছে। উত্তরপ্রদেশের লোকরা আর্থিকভাবে দুর্বল, আর হচ্ছে শিক্ষাগত দুর্বল, কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব তার সর্ব। সেই জন্য যাদেরকে আমরা বলি অশিক্ষিত দুর্বল লোক, তারা ওখানে নিজেদের সমাজের লোকদের ওই মায়ের দিয়ে 4 মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে। আর আমরা বলি এডুকেটেড লোক, জ্ঞানী লোক, বহু জানি, বড় বড় চাকরি করে বড় বড় পয়সা পায়। এখন পর্যন্ত তারা তাদের সমাজকে এখানে বেশি থাকা, এখানে 35% থাকা সত্ত্বেও এখানে রাজা বাড়তে কেন? ওই একটাই কারণে, বিক্রি হওয়া লোক, মানে সমাজকে দুটো পয়সার জন্য বিক্রি করে দিতে হবে। সেই জন্য তাদেরও সাবধান করছি, আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের সাবধান করছি যে পার্টির লোক যেখানে বসার জন্য যাবে সে যত সামাজিক লোক না বই, আমিও যাবো, কিন্তু আমার পার্টি আগে পরে উঠে আছে। পার্টি পদ নিয়ে যাবো এবং চিফ গেস্ট আমাদের হতে হবে, তবে সেখানে আমরা যাবো। তাই আপনাদের বলছি যে এই বিরোধী করার জন্য, সেই জন্য আপনারা সতর্ক থাকবেন। আশা করি আগের থেকে অনেক বেটার পার্টির সংগঠন। এই 3 বছরে বুঝাতে আগে তো যখন আমি করতাম তখন আমি একাই ছিলাম, আমার সঙ্গে তারা বুঝতো না। আজকে তো 5টা লোক আসছে আমার সঙ্গে, 5টা লোক বলা শুরু করেছে আমার মতন, তো আজকেও 30 বছর লেগেছে তাদেরকে সেই জায়গা আনতে। এর জন্য আমাকে আনছে কি করছে, কানসামটি আগে বলতে শেষ করে দেবো কথা হবে। কানসামটি প্রায় আমাদের 88 সাল থেকে 2003 পর্যন্ত লাস্ট কোয়েশ্চেন এপ্রিল মাসের সময়, এপ্রিল মাসের 2003 সালে কল্যাণী আম্বেদকর ভবনে লাস্ট 88 আমি যে পার্টিসিপেট তবে 19 সেপ্টেম্বর প্রথম কানসামটি সামনে দুবার করে মিটিং হয়েছে, দেখা হচ্ছে প্রথম মিটিং, যেদিন দেখি প্রথম, এবং মিটিং এর ম্যানেজমেন্ট আমি ছিলাম। তার থেকে 2003 এপ্রিল মাস পর্যন্ত আপনার
কল্যাণী আম্বেদকর ভবনে গেছি। এই যে প্রায় 15 বছর আপ্রাণ চেষ্টা করছে সমাজকে, বিশেষ করে মহাপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ মন্ডলে পুরুষার্থিক সমাজকে নিজের করে দান করাবে, কিন্তু এরা দাঁড়ায়নি। এরা কাংক্ষিকতা মানেনি, কাংক্ষিকতা তারা মানতে পারবেন। তো সেই জন্য তো এটা তো কাংক্ষিকতা আমার থেকে হাজার শুরু করেছে, হাজার যোগ্যতা। আমি একটা বিন্দু না, তো আমি অনেক এগোয় দিলাম, আমি এগোতে পারিনি। আমার কাজ কি ছিল? কাংক্ষিক কথা যারা মানতো, যারা চলে আসে তারা ছাড়বে, যারা মানতো তাদের ধরে রাখতে আমার কাজ ছিল সাসপেন্ড করা, মানে এই ধরা। সেই কাজটা আমি নিষ্ঠার সঙ্গে এবং সুন্দরভাবে সেটাকে ধরে রেখেছি যে আগামী প্রজন্মটা তাদের যাতে তুলে দিতে হবে। যেটা বাবা সাহেব কাংক্ষিক এখানে আসার মতো জগন্নাথ মন্ডল যখন বেঁচে ছিল, তিনি চলে যাওয়ার পরে 13 বছরে তার সঙ্গে সমস্ত লোক সমাচারের কাছে তিনি পাননি, উত্তরপ্রদেশে তিনি পেয়েছিলেন। তাই আজকে আপনাদের বলছি যে এই সমস্যাগুলো আপনাদের সামনে আসবে, এগুলো কঠোর মোকাবিলা করে আপনাদের এগোতে হবে, সংগঠন করতে হবে। এখন তো অনেকখানি মানে এই 3 বছর আগে বেশ কিছু লোকদের এই জায়গায় তৈরি করতে পেরেছে। আগামী দিনে আশা রাখছি আরো বেশি করে তৈরি করতে পারে যারা এই বুঝবে যে আমাদের পার্টি হচ্ছে 1 নম্বর, পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় করে দাঁড়াবে কোন সামাজিক সংগঠন রাজনৈতিক চাই। আমাদের সংসারের জন্য কাংক্ষী বহুজন সমাজ পার্টি ছাড়া অন্য কোনো অর্গানাইজেশন, সোশ্যাল মানে কোনো অর্গানাইজেশন কোন মিন্স তৈরি করেনি, কারণ পার্টিটাকে তৈরি করবে। এই জন্য আমরা একটা সেতু এই বলে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাদের যারা আমাদের গেস্ট এসছেন, যারা আমাদের পদাধিকারী, স্টেট কোঅর্ডিনেটর অথবা স্টেট কমিটি গ্রুপ এবং সবাইকে যারা তাদের ধন্যবাদ জানাই। সর্বশেষে আমাদের মহাপুরুষদের সকলকে সকলকে প্রণাম জানিয়ে আজকে এই সভায় আমি সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় ভীম, জয় ভারত। স্লোগান দাও, স্লোগান দাও না। আর চন্দন যাদের কাছে যাবে, চন্দন যাদের কাছে যাবে তারা চন্দনকে আমাদের কথা বলে একটু সহযোগিতা করবে। জয় ভীম, জয় ভারত, সমাজ পার্টি জিন্দাবাদ, সমাজ পার্টি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ,